Thanks everyone. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब मैं sir. आप सबको प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। अब मैं आप सबको एक ऐसे चाइल्ड के बारे में, एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो कि हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड 8 से लेकर के फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर she has been the student of Ahuja Career Institute standard 8, 9 and currently she is in standard 10. She has opted regular course as well as advanced batch, right? She was a student of regular and advanced batch both. She is a very good reader. Her hobby is to read the books. She is the most disciplined and the most sincere student of our institute, we can say, we have ever seen. उन्होंने सिल्वर जोन ओलंपियाड जो कंडक्ट करवाते हैं उसमें इंग्लिश में लास्ट ईयर व्हेन शी वाज इन स्टैंडर्ड 9 शी हैज अचीव्ड गुजरात स्टेट रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 103. इन साइंस शी हैज अचीव्ड स्टेट रैंक 155, ऑल इंडिया रैंक 1985. शी हैज अचीव्ड स्टेट रैंक 105 इन मैथ्स इन गुजरात and all India rank 1115, which is very nice rank, all India rank as well as state rank. और इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर उसका जो कमांड है which is very excellent and she is studying in Bright International School of the Kakaria. I would like to unmute Shravani Pillai. Yes, Shravani? sir. हाँ, sir. Yes. Congratulations बेटा. Again, Thank you, sir. वैसे तो लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली जो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड है स्टैंडर्ड 8 में भी आपको ही मिला था, स्टैंडर्ड 9 एज वेल एज स्टैंडर्ड 10. इस बार भी बेटा बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपका अवार्ड है वो आप ही को मिल रहा है. ठीक है, आपको बेटा मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा. 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की प्रिपरेशन करते करते थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा बीच में बिफोर 1 or 2 months कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं थोड़े से डिमोटिवेट हुए रहे. राइट श्रावणी? हाँ, सर. हाँ, सर. आपने मेरे साथ ये बात डिस्कस भी की थी, राइट? बट हाँ, मैंने आपको सर. तभी बताया था बेटा कि यू आर ऑलवेज, सी श्रावणी पिल्लई, यू आर ऑलवेज अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट, राइट? आपकी जो मेहनत है बेटा उसमें थोड़ा सा डीप आता रहता है. हर किसी की जो मेहनत है वो थोड़ा प्लस माइनस होती रहती है बेटा, लेकिन अगर आप आपके टारगेट और उसको लेकर के चलेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो मैं आपसे कुछ मैम प्लीज अनाउंस द प्राइस फॉर द Shravani. Okay, so again, this is a book that is one of my favorites. Actually, I always push my favorite books onto students, and I really push them towards reading my favorite books. So again, I've come up with a wonderful book. Actually, this book is called How to Win Friends and Influence People. Okay, I'm not gifting this book to Shravani because she doesn't know how to make friends. She already has a lot of friends and she can make a lot of friends. But this is a wonderful piece of book. ये इतनी बढ़िया किताब है कि मैं रेकमेंड करूंगी हर किसी को ये किताब पढ़े. डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी गई है. डेल कार्नेगी is one of the best self-help book writers that we've had, and Shravani already knows about the book because she has come across multiple examples that I have quoted in the I have class. already read it, ma'am. Oh my God, I'll have to change the book for Shravani then. No worries. I mean, it's still one of my favorites. Okay, it's okay. We can actually read this book as many times as we like. It's one of the Gita Bible type of books that one must read. Highly recommended. Okay, congratulations, Shravani. Thank you, ma'am. Shravani, congratulations beta. Now tell me, हाँ, sir. how is your journey of 3 years in Ahuja Career Institute? Please tell me something about your journey in Ahuja Career Institute. It has been really wonderful. I've really loved studying there. I mean, it's like my second home. Very nice. You feel like your second home. Very nice. Yes. Okay. So tell me, how is the support of teachers of the institute? Please share with our parents. It's really wonderful. I mean, we
always get a great support from the teachers. Like if we have any doubts, or in general, if we like face any difficulties, like the time I was facing a bit of pressure in my studies or something, you can go and talk to our teachers about that. In that time, we जो get a lot of support. yes, आपका जो बेटा मैथ का जो हाउ है वो थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर पढ़ने के बाद? हाँ सर, ठीक पर थोड़ा सा तो है। वो तो Okay, it will be really good. Still we have 3 months. Don't worry. So tell me, आपके जो भी अचीवमेंट है बेटा, what is your regular study pattern in your every day? What is your study pattern? Just share with the parents. So, ऐसे देखे तो अभी मतलब ऐसा मेरा कोई डिसाइडेड स्टडी पैटर्न नहीं है। मैं जस्ट मेरे डेली गोल्स और मेरे वीकली गोल्स सेट करती हूँ, और फिर वो जो गोल्स हैं कैसे भी करके मेरे शेड्यूल में उन्हें फिर थोड़ा आगे पीछे तो होता ही रहता है, कोई परफेक्ट शेड्यूल रहता नहीं है। फिर वो गोल्स मैं सेट करती हूँ और वो गोल्स मुझे फिनिश करना होता है विद इन द वीक, फिर मैं कभी भी कर लूँ। ओके, तो जो आपके डेली गोल्स है और आपके जो वीकली गोल्स है उसके बारे में थोड़ा सा बेटा बताइए डिटेल में। डेली गोल्स मतलब एक तो मेन होता है जो स्कूल में किया या यहाँ पे लेक्चर्स में किया, वो एक बार रिवाइज करना है। और अभी एग्जाम्स आ रहे हैं पास, तो एक एक चैप्टर्स जो हो गए हैं पहले उनका रिवीजन ऐसे लाइक एक दिन में सपोज एसएस का एक ले लिया या फिर दूसरे किसी सब्जेक्ट का कोई ले लिया। वेरी नाइस। ये सारे ही जो बच्चे हैं जिनको हम प्राइज दे रहे हैं उनके बीच में एक बात कॉमन है, अगर उनके अटेंडेंस की बात करें राइट, तो शायद ही उन्होंने अटेंडेंस 99% से ऊपर ही होगी। मुझे नहीं लगता कि श्रावणी ने खुशी ने कभी क्लास मिस किए हैं, चाहे स्कूल में एग्जाम हो या ना हो। She has never missed a single class of math, science, English or SS. It's a wonderful. Now tell me श्रावणी, अब बेटा डेली कितना स्टडी अवर्स देते हैं? So ऐसे देखे तो it depends on the day, but normally 4 to 5 मिनिमम तो हो ही जाता है। अब एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा स्टडीज एक्सेप्ट स्कूल, राइट? हाँ सर। ओके बेटा, वेरी नाइस। अच्छा, काफी जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल की स्टडीज को और कोचिंग की जो स्टडीज है दोनों को बैलेंस करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर स्कूल का ये बर्डन है मेरा, ठीक है, मेरा कोचिंग में ये, इसलिए मैंने कोचिंग में तैयारी नहीं की। तो आप बेटा आप दोनों को कैसे बैलेंस करके चलते हैं, इसके बारे में जरा बताओ। हाँ सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये इश्यू होता है कि बहुत सारा वर्क अक्यूमुलेट हो जाता है और फिर वो एक साथ कैसे करें। तो आप अगर रोज का काम रोज फिनिश कर दो स्कूल का या ट्यूशन का, तो फिर ऐसा बर्डन नहीं रहेगा कि बहुत सारा काम एक साथ ही पाइल अप हो गया। वेरी नाइस। तो आपको रोज का काम रोज करना चाहिए तो बर्डन नहीं बढ़ेगा, राइट? क्योंकि काफी बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि स्कूल की वजह से ये नहीं हुआ, स्कूल की वजह से वो नहीं हुआ। आपको दोनों चीजें मैनेज करके चलनी ही है, तभी आपका ग्रोथ होगा, ठीक है? ओके बेटा, मुझे ये बताओ कि आपने स्टैंडर्ड 8 और 9 में अपनी जो रेगुलर एनसीईआरटी की बैच है, साथ साथ में आपने एडवांस बैच भी ऑप्ट किया था, तो एडवांस बैच का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सच में बहुत अच्छा है कि एडवांस बैच की वजह से, जैसे मैंने 8th में एडवांस बैच ऑप्ट किया था, उसकी वजह से मेरा 9th में मुझे ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आए। जो थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे क्लियर थे, एंड प्लस उसका एडवांस बैच की वजह से ओलंपियाड में भी उसमें बहुत हेल्प होता है कि ओलंपियाड में सारी चीजें किताब में से नहीं आती, बाहर से आते हैं। तो एडवांस में थोड़ा बाहर से एक्स्ट्रा आता है, तो इसलिए हेल्प्स अ लॉट। ओके ओके, ओलंपियाड में आपको काफी हेल्प मिलती है, राइट? वेरी नाइस। ओके ओके। और थोड़ा सा मुझे आपकी जो रीडिंग हैबिट है या तो आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसके ऊपर बेटा बताओ। पढ़ाई के अलावा आपकी क्या हॉबीज है और आप क्या एक्टिविटीज करते हैं डेली बेसिस पे? पढ़ाई के अलावा तो मतलब मैं रीड करती हूँ किताबें, एंड आई लाइक टू पेंट। इसके सिवा आई डोंट थिंक लाइक योर मदर। यस यस। सो Here I have to point one thing about Shravani. श्रावणी उन बच्चों में से है जिसको पनिश करने के लिए उसके हाथ से किताब छीननी पड़ती है कि अब बहुत हो गया, अब और रीड नहीं करना, अब कुछ और करो। तो रीडिंग हैबिट सभी बच्चों को कल्टिवेट करना चाहिए। यस, मेरा बीच में एक बार कॉन्वर्सेशन हुआ था श्रावणी के साथ। शी टोल्ड मी कि सर मैं एक दिन में भी पूरी किताब रीड कर सकती हूँ। शी इज द, लेट मी टेल यू ऑल द पेरेंट्स,
राइट, शी फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स। और हमने मैक्सिमम जो बुक्स शायद आज तक प्राइज में दी है अपने 3 साल में, वो श्रावणी को ही दी है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपके लिए मैं 2 लाइंस कहना चाहूंगा। इस बाज को उड़ना अभी बाकी है, इस परिंदे का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी लाना है सिर्फ समुद्र को, पूरा आसमान अभी बाकी है। ठीक है, आप इतनी तरक्की करो बेटा लाइफ में कि जिस स्टेट में आप काम करो या तो जिस सिटी में काम करो, वो सिटी आपके नाम से जानी चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। नाउ काफी पेरेंट्स से मेरी शुरुआत में भी बात हुई थी, स्टार्टिंग में भी हमने सेमिनार, लेकिन वो हमने अप्रैल में किया था। उसके बाद काफी पेरेंट्स ने लेट एडमिशन, मतलब लेट ज्वाइनिंग, थोड़ा सा काफी पेरेंट्स दिवाली के बाद ज्वाइन हुए हमारे साथ। तो हमारी जो सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसा ना सोचें कि प्राइस तो सिर्फ बच्चों को ही दे रहे हैं, पेरेंट्स के लिए क्या है। ठीक है, आपके लिए भी कुछ ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप लास्ट तक सेमिनार अटेंड करते हैं, आपके लिए भी हमने एक एक्टिविटी अरेंज की है। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम थोड़ा सा अपने सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो डिवीजन है, राइट, वो 2 पार्ट में डिवाइड हुए। एक है स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8, एक है स्टैंडर्ड 9 एंड 10। स्टैंडर्ड 6, 7, 8 इज प्री फाउंडेशन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड 9 एंड 10 इज करियर फाउंडेशन डिवीजन। तो मैं पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहूंगा। ठीक है, जो भी विलिंगली आंसर देना चाहते हैं, मुझे ये बताइए कि आप कहीं ना कहीं अच्छा, आप में से कोई टीचर है क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स। आप में से कोई टीचर है किसी भी फील्ड में, मतलब कॉमर्स, साइंस, स्टैंडर्ड 6 to 10? अच्छा, ये सारी मतलब टीचर है। ठीक है मैम, प्लीज आपका माइक अनम्यूट करिए। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं क्या? यस। हाँ, वैसे तो जो हर पेरेंट है वो अपने बच्चों के लिए एक टीचर ही होते हैं। अपने बच्चों को तो पढ़ाती है, ख्याल रखते हैं, राइट, तो अपने बच्चों के लिए तो टीचर है। और आप रियल में टीचर है। तो मैम आप मुझे ये बताइए कि स्टैंडर्ड 6 to 10 12 के बीच में अगर आपको चॉइस दी जाए कि कौन सा स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 6 to 12 में, तो आपका क्या व्यू है कि ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है? जरा आपका व्यू मुझे बताइए। यस सर, मैं 6 to 8 में मैथ्स और साइंस ही पढ़ाती हूँ। तो मेरे ख्याल से 6 स्टैंडर्ड जो बेसिक है, जो अभी एनसीईआरटी की बुक्स आ रही है, तो उस हिसाब से 6 स्टैंडर्ड में अगर हम इतना क्लियर करते हैं सब सब्जेक्ट में, तो फिर आगे जाके हमको दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो 6 स्टैंडर्ड जो बेसिक है मेन, वो इम्पोर्टेंट है। मैम आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, आपकी मेरी मेंटालिटी काफी मिलती जुलती है, काफी नहीं 100% मिलती है। ठीक है, और कोई पेरेंट इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एनी अदर? स्टैंडर्ड 6 to 12 में आप कौन से स्टैंडर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे? अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैम ने बताया कि स्टैंडर्ड 6, 7, 8, राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं भी इस बात को अग्री करता हूँ, क्योंकि जो भी पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पता होगा स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सारे बेसिक कंसेप्ट। स्टैंडर्ड 6 में फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। स्टैंडर्ड 7 में फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंटीजर्स। स्टैंडर्ड 8 में फर्स्ट चैप्टर दैट इज रैशनल नंबर। सारे जो नंबर्स हैं वो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड 7 के मैं स्पेसिफिकली आपको मैथ्स का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। स्टैंडर्ड 7 में लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर विद द सेम नेम्स स्टैंडर्ड 9 में भी आते हैं। लाइंस एंड एंगल्स स्टैंडर्ड 7 में भी है, विच इज द बेस ऑफ द ज्योमेट्री, जो स्टैंडर्ड 9 में भी आता है। स्टैंडर्ड 7 में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज भी हैं, जो स्टैंडर्ड 9 में भी आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड 6, 7, 8
आपका अगर क्लियर है सारे कंसेप्ट, 9-10 तो जस्ट उसकी एप्लीकेशन ही है, राइट? वो कंसेप्ट आपको कैसे यूज करने हैं, आपको खाली वही ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड 6-7 जनरली हम क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स की ऐसी मेंटालिटी होती है कि स्टैंडर्ड 9-10 में आके ट्यूशन रखवाना, ठीक है, कि स्टैंडर्ड 9-10 बोर्ड है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9-10 में बच्चा क्या परफॉर्म करेगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8। अगर आपने स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में अच्छी मेहनत की है, स्टैंडर्ड 9-10 में आपको कोई प्रॉब्लम आने, शायद आप 9-10 में ट्यूशन ना भी रखा हो तो चलेगा, अगर आपने स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में अच्छा किया है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे 10 to 11 में मूव करना हो तो 10th में रिजल्ट का वेट करते हैं कि 10th में क्या रिजल्ट आएगा, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आते, मैथ में ज्यादा मार्क्स आते तो 11th में मैथ्स रखेंगे, या तो बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स आएंगे तो दिस इज वेरी लेट, दिस इज वेरी लेट। अच्छा, स्टैंडर्ड 11-12 में जो भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस होती है, JEE या नीट, आप सभी को पता होगा, आजकल तो सारे जो एग्जाम्स के नाम है सारे पेरेंट्स को पता होता है। इंजीनियरिंग एग्जाम, JEE, या तो कॉमर्स लाइन लेते हैं तो कैट की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट की एग्जाम। आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी ही आपको प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। प्रीमियम कॉलेज की मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सबने आपके आसपास के जो लोकल कॉलेजेस हैं, जैसे हसमुख गोस्वामी कॉलेज, किसी ने नाम सुना है क्या, हसमुख गोस्वामी कॉलेज? राइट। RH पटेल कॉलेज, KB ठक्कर कॉलेज, वेरी फ्यू, शायद कि कोई जानता भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको सामने ऐसे बताऊं कि निर्मा यूनिवर्सिटी, धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी, DIISCT, ठीक है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, SCNIT सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट सूरत, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, आप इन सभी के नाम आप जानते हैं। बच्चे आगे जा करके JEE और नीट में क्या स्कोर करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या स्कोर करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे JEE, नीट और इन ऑल अदर एग्जाम्स जो ऑल इंडिया रैंक लेकर के आते हैं, AIR, आपने देखा ही होगा, AIR ऑल इंडिया रैंक, मतलब सारे बच्चे इंडिया के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बीच में रैंक निकलती है, उसको AIR बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंक। तो वो बच्चे, अपने जो बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और जो बच्चे AIR रैंक लेकर के आते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? वो भी तो स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। उनकी पैटर्न में और बाकी सब बच्चों की पैटर्न में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एडवांस में ही शुरू कर देते हैं। वो लोग स्टैंडर्ड 10 का वेट नहीं करके, स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्टेप, वो लोग अपना जो एनालिसिस है वो स्टैंडर्ड 6 to 8, 9 में कर ही लेते हैं कि हम आगे जाके क्या करना है, और उसकी तैयारी पहले से स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके वो ऑल इंडिया रैंक लेकर के आते हैं। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी है, मार्कशीट देखने के बाद वो बच्चे 3-4 साल पहले उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। यही डिफरेंस है ऑल इंडिया रैंक और बाकी सब बच्चों में। कोई पेरेंट अगर कुछ कहना चाहता है बीच में तो अपना हैंड रेस करके बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, मैं अभी तो बच्चों की एज काफी कम है, स्टैंडर्ड 6, 7, 8 में ही है, 9th में ही है। स्टिल अगले 1 या 2 साल में आपको ये सारी चीजें सोचने का टाइम आ जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ ये थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं। आगे जाकर के बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में, आपको इंजीनियरिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। इंजीनियरिंग फील्ड में हर कोई बच्चा जो है वो इंजीनियर बन ही जा रहा है, जो भी बनना चाहता है वो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने गुजरात में 150+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस अभी हैं, और उसकी जो टोटल सीट्स है वो 80,000+ है। और उसके सामने एवरी ईयर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम देते हैं गुजकेट की, जो गुजरात की अपनी पर्सनल एक प्राइवेट जो एग्जाम है, वो जो एग्जाम देते हैं उसका नंबर 70,000 ही है। 80,000 सीट्स के सामने 70,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, तो सबको सीट तो मिल जाएगी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं। आप SVNIT सूरत से ग्रेजुएशन करते हैं और एक लोकल कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि आप कौन सी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं।
एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप SVNIT सूरत से ग्रेजुएशन करते हैं, आप 4th ईयर में जब बच्चा अपना होता है तभी मल्टीनेशनल कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, राइट। स्टार्टिंग में 50,000 40,000 का पे स्केल दे करके शुरू होता है, और सामने लोकल कॉलेज अगर बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो 10,000 सैलरी के लिए भी उसको 10 धक्के खाने पड़ते हैं। आर यू अग्री विथ मी एवरीवन? आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर आप देखते ही होंगे, आपके जो आसपास जितने भी एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के कितने भी इंजीनियर्स का हाल आप देखते होंगे। तो ग्रेजुएशन आप कहाँ से करते हैं? आपके लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो वहीं से है। आपकी लाइफ का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वो वहां से शुरू हो जाता है, अगर आप अच्छी प्रीमियर कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन करके आप बाहर आते हैं, ठीक है। सिमिलरली मेडिकल लाइन में अगर आप बीजे मेडिकल जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से MBBS करते हैं तो आपके लाइफ में फिर पीछे मुड़ के देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये आपको एडवांटेज है कि जितना अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्म करोगे, बोर्ड जो है वो एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही है। बोर्ड के जो परसेंटेज में क्वालिफाइंग, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूं कि बोर्ड में मान लो कि आपके 95% आ गए, और JEE की एग्जाम जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम है, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपके 30 मार्क्स हैं। 320 मार्क्स की एग्जाम होती है, 360 मार्क्स की, उसमें से आपके 30 मार्क्स हैं। पर एक दूसरा बच्चा है जिसके बोर्ड में सिर्फ 60% ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके 320 में से 150 मार्क्स है। तो कौन से बच्चे को ज्यादा अच्छी कॉलेज मिलेगी और कौन से बच्चे को उसकी ड्रीम ब्रांच मिलेगी? तो वही जो JEE में अच्छा परफॉर्म करता है, बोर्ड के जो बेसिस हैं, बोर्ड के बेसिस पे आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलने वाली, आपको वहां पर JEE या नीट के स्कोर से एंट्री मिलने वाली है। बोर्ड इज जस्ट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसलिए उसकी तैयारी जो है वो एडवांस में करनी जरूरी है। अपने बच्चे जब 11th-12th में जाके नेशनल लेवल की एग्जाम देते, उसको पहले कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। मुझे आप बताओ कि जो बच्चे ओलंपियाड नहीं देते उसमें उसके अलावा कोई भी बच्चा जो नेशनल लेवल की एग्जाम देता होगा, आप मुझे बताओ। उनको नेशनल लेवल की एग्जाम का जो एक्सपीरियंस होता है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद शुरू होता है। और जो बच्चे ओलंपियाड की एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ओलंपियाड की एग्जाम देते हैं, उनको पहले से एक्सपीरियंस है, नेशनल लेवल की एग्जाम्स का, मॉक टेस्ट का उनको एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली कोई फील्ड पे जाके कोई रणजी ट्रॉफी का प्लेयर खेलेगा और कोई एक्सपीरियंस प्लेयर खेलेगा, तो दोनों में फर्क होगा। तो इसीलिए नेशनल लेवल की एग्जाम्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेट मी गिव यू सम इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आप स्लाइड पे देख सकते हैं, टायर 1 इज बोर्ड एंड टायर 2 इज एडवांस। इस बार ऑनलाइन की वजह से करंट ईयर हम एडवांस बैचेस नहीं रन कर पाए थे, बट हम कंटिन्यूअसली लास्ट 2 ईयर्स हमने एडवांस बैचेस भी रन की थी, और नेक्स्ट ईयर से भी हम एडवांस बैचेस शुरू करने वाले हैं। क्या होता है डिफरेंस? तो जो बोर्ड स्टडीज है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर NCERT लेवल, जिसके अंदर हम NCERT को ही प्रोमिनेंटली पढ़ाते हैं। उसका एक एक एग्जाम्पल, एक एक उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो करवाते हैं, और बिल्कुल बेसिक से लेकर के शुरू करते हैं। कोई भी कंसेप्ट एकदम बेसिक से शुरू कर, जैसे इस बार मैंने स्टैंडर्ड 9 में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाया, तो पहले मैंने स्टैंडर्ड 7 का लाइंस एंड एंगल्स आपको पूरा क्लियर करवाया, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड 9 का लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट किया। तो एकदम जहां पर भी हमें लगता है एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं सारे कंसेप्ट को, ताकि हर बच्चे को समझ में आए, वीक में वीक बच्चे को समझ में आए। ये हमारा टारगेट रहता है बोर्ड स्टडीज में, जिसका टारगेट है बोर्ड। और सेकंड जो हमारा बैच चलता है, सेकंड जो हमारा कोर्स चल रहा है दैट इज एडवांस बैच। एंड एडवांस बैच जो है वो हमारा स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 10 तक सारे स्टैंडर्ड्स में चलता है। एडवांस बैच में जो मटेरियल मिलता है बच्चों को, IIT फाउंडेशन सीरीज का एक अलग से मॉड्यूल मिलता है। क्या डिफरेंस है एडवांस बैच और नॉर्मल बैच में? एडवांस बैच में जो सारे कंसेप्ट होते हैं वो NCERT के ही होते हैं, कोई अलग कंसेप्ट नहीं पढ़ाते हम, लेकिन उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। NCERT में बेसिक कंसेप्ट होते हैं, एडवांस के मॉड्यूल्स में उसकी एप्लीकेशन होती है, बस यही डिफरेंस है। और स्पेसिफिकली जैसे श्रावणी ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हेल्प मिलती है, राइट। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे सिल्वर जोन ओलंपियाड इस बार भी काफी बच्चे दे रहे हैं, वो हम कंडक्ट करवाते हैं। सिल्वर जोन इज अ प्राइवेट एग्जाम कंडक्शन बॉडी
ठीक है, जो प्राइवेटली ओलंपियाड्स लेते हैं ऑल ओवर द इंडिया, सेम साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन SOF, काफी स्कूल में से बच्चे देते हैं सिल्वर जॉन और SOF ओलंपियाड्स। एंड NTSC का नाम पहले किसी ने सुना हुआ है? Yes, एनी sir. पेरेंट, Yes, एनी sir. पेरेंट हर्ड द नेम? हाँ, उसके बारे में जरा मुझे बताओ बेटा, आप क्या जानते हैं NTSC के बारे में? आप NTSC के बारे में बेटा क्या जानते हैं वो बताओ मुझे जरा। NTSC की जो एग्जाम है वो स्टैंडर्ड 10 की बहुत ही प्रीसियस एग्जाम है। वो प्रीसियस Sir, है, it is a scholarship exam. We very get nice, it's a scholarship scholarship exam, in this exam. right, you are right. Anything else? NTSC की जो एग्जाम है वो गुजरात गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, गुजरात गवर्नमेंट अपना जो गुजरात बोर्ड है वो कंडक्ट करता है। सो इसीलिए उसका जो इंपोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। NTSC की एग्जाम सिर्फ स्टैंडर्ड 10 के ही स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ओनली स्टैंडर्ड 10। और वो 2 स्टेज में होती है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो अपना गुजरात बोर्ड ही कंडक्ट करता है, और जो सेकंड स्टेज होता है वो NCERT जो है वो कंडक्ट करते हैं, CBSE बोर्ड, राइट। उसमें भी मैथ, साइंस और मेंटल एबिलिटी, जो इस बार भी मेंटल एबिलिटी को सबको पता ही है, हमने उसके दिवाली वेकेशन में उसके क्लासेस भी लिए थे और काफी बच्चों ने उसमें ज्वाइन भी किया था। जो बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी फेस किया होगा। ये सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे था। इसका जो बेनिफिट्स है, अगर बच्चा दोनों स्टेज क्लियर कर लेता है, 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, 2000 स्टूडेंट्स। 11-12 में उनको पर मंथ 1250 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। ग्रेजुएशन लेवल पे भी उनको पर मंथ 2000 रुपीज की स्कॉलरशिप मिलती है। इवन वो पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD करते हैं तो भी उनको एवरी मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चे जब तक पढ़ाई करते तब तक उनको पर मंथ स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। तो बहुत ही प्रीसियस। इस बार भी अपने इंस्टीट्यूट से अप्रोक्स 30 to 35 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है NTSC के एग्जाम में। आपके साथ आपको स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। जो बोर्ड के रिजल्ट हैं हमारे स्टैंडर्ड 2020-21 के, 2020 मतलब लास्ट ईयर तो मास प्रमोशन हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है बोर्ड का वो है ये। जो सैल पटेल करके स्टूडेंट आपको दिख रहा है, डिवाइन बर्ड स्कूल का स्टूडेंट था, और वो मेरे साथ स्टैंडर्ड 7 से पढ़ा। मैं पहले भी जब यहाँ पर पढ़ाता था वो स्टैंडर्ड 7 से मेरे साथ था, स्टैंडर्ड 10 तक। उसके मैथ्स में 99 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और वो 1 मार्क्स जो उसका कटा था वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम में कटा था। इंटरनल जो स्कूल में से देते उसमें ही कटा था, बाकी एक्सटर्नल में 80 में से 80 मार्क्स थे सैल पटेल के। और भी बच्चे जैसे हेब्रोन से दरसिल गौर था, राइट, व्रत शाह था डिवाइन बर्ड स्कूल से, नेल्सन रचना स्कूल, आयुषी शाह, she was one of the brilliant student of our first year। आप उसका वीडियो, उसके जो व्यूज है, उसके रिव्यूज आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे तो उसका पूरा वीडियो वहां पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर बच्चों ने कुछ कमेंट्स जो भी उन्होंने फिल किया, वो कमेंट्स उन्होंने जो बताए वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे व्रज क्या कहता है, व्रज says that do all the work provided by the institute on daily basis to get the best result, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आपके साथ, डेली बेसिस पे आपको काम करना चाहिए। सैल पटेल क्या कहता है, फॉलो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर टीचर एंड पेरेंट्स विदाउट एनी सेकंड थॉट टू गेट द बेस्ट आउटपुट। मतलब आपके पेरेंट्स, यही बात मैंने आपको पहले भी समझाई, आपके पेरेंट्स और टीचर्स जो भी कहते हैं उसको थॉरोली उसको आपको फॉलो करना है, राइट। ध्रुव क्या कहता है, बी स्ट्रेस फ्री एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर which will automatically prepare you for the board exams। ठीक है। और भी हमारे यहाँ पर ICSE के भी सेपरेटली बैच चलते हैं, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स एवरी ईयर हमें मिलते हैं। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मन उपाध्याय 2019-20 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। हमारा जो सिल्वर जॉन ओलंपियाड का रिजल्ट था उसमें बच्चे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसका मैथ्स ओलंपियाड में गुजरात लेवल पे फर्स्ट रैंक था, और जो मेडल मैंने लिखा है गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल क्या है, तो गोल्ड मेडल उन सबको मिलता है जिसके 50 से ज्यादा मार्क्स हैं और साथ साथ में उसके क्लास में उसकी रैंक 1, 2 या 3 है, मतलब फर्स्ट रैंक है क्लास में, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। इंडिया लेवल पे भी उसका 43rd रैंक था मैथ्स में।
इंग्लिश में भी उसका काफी अच्छा रैंक था, गुजरात लेवल पे 76 और क्लास लेवल पे और इंडिया लेवल पे भी उसका 2000 प्लस उसका रैंक था। मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों में ओलंपियाड में सिल्वर जंग उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था इंडिया ईयर 2019-20। जैसे मैंने अभी आपको श्रावणी की बात की, श्रावणी ने लास्ट ईयर जब वो 9th में थी तब ओलंपियाड में उसने पार्टिसिपेट किया था सिल्वर जोन में और काफी अच्छे रिजल्ट। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इंग्लिश ओलंपियाड में उसका स्टेट रैंक 7 एंड इंडिया लेवल पे उसका 103rd रैंक है, विच इज रियली अप्रिसिएबल। और भी काफी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और रैंक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी बच्चे मेडल्स वगैरह अचीव करते हैं, जो भी रैंक्स लेकर के आते हैं, उनको हम मोटिवेट भी करते हैं। और ये जो मेडल्स है वो हम नहीं देते हैं, ये जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करते हैं वो बॉडी से ही आते हैं और वही हम बच्चों को देते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको काफी पेरेंट्स को एग्जाम पैटर्न के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट जो एग्जाम पैटर्न उसके बारे में नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जाम पैटर्न। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पर जो हम एग्जाम करंटली लेते हैं उसमें एक होता है पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट हम एवरी वीक लेते हैं। दैट इज चैप्टर वाइज, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट होता है, वो 30 या 40 मार्क्स की ही होती है, राइट। मेक श्योर कि पीरियोडिक टेस्ट देने के बाद बच्चा उस पेपर को पूरा सॉल्व करे। मैं आइडियल आंसर शीट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पेपर देने के बाद आपकी जो मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। हम पेपर इसीलिए लेते हैं कि आपको मान लो कि 50 मार्क्स का पेपर में 30 मार्क्स को आपका आ गया, लेकिन 20 मार्क्स आपके कट गए, तो वो 20 मार्क्स कहाँ पर कटे हैं वो आपको देखना है। 30 मार्क्स को आपको आता था तो वो तो आपने लिख दिया, लेकिन 20 मार्क्स का आपकी कहाँ गलती हुई है उसको रेक्टिफाई करना, उसके डाउट सॉल्व करवाना, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। काफी बच्चे हैं जो पेपर होने के बाद पूरी की उसके सारे जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करके कहीं ना कहीं से उसके सॉल्यूशन निकाल के या तो हमसे पूछते हैं या तो गूगल करके उसका सॉल्यूशन पूरा करके हमें सबमिट करते हैं कि सर ये मेरी मिस्टेक्स थी, ये मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। ये जो चीज है वो रेगुलर होना चाहिए इन ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ द स्कूल एंड द इंस्टीट्यूट। ओपन टेस्ट हम सिर्फ एक बार लेते पूरे साल में, जो इस बार भी हमने लिया था। ओपन टेस्ट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को 240 मार्क का कंसेप्ट, 240 मार्क का जो कंटेंट है वो पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम ओपन टेस्ट है। बच्चों को 240 मार्क का जो कंटेंट होता है उसका पूरा सॉल्यूशन बना के यहाँ पर आना होता है एग्जाम में, और फिर उसमें से हम 80 मार्क की टेस्ट लेते हैं। और उसमें वैसे क्वेश्चन जो बहुत ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें उसके अंदर हम डालते हैं। तो ये कंसेप्ट है ओपन टेस्ट, जो साल में एक ही बार हम लेते हैं। मेजर टेस्ट जो हाफ एनुअल, स्कूल में जैसे हाफ एनुअल एंड एनुअल एग्जाम होते हैं वैसे मेजर टेस्ट भी हम यहाँ पर लेते हैं इंस्टीट्यूट में। अभी अभी हमने रिसेंटली मिनी टेस्ट का कंसेप्ट लॉन्च किया है और वो काफी सक्सेसफुल भी रहा है। जैसे मैथ्स के 2 लेक्चर हैं वीक में, राइट, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो भी पढ़ाया बच्चों को वो होमवर्क भी करना है और साथ साथ में उसको लर्न करके आना है, जिसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों का जो मैथ्स का हाउ है, बच्चों जो छोटे छोटे टुकड़े में बच्चों की तैयारी हो जाती है मैथ्स की, ये हम सिर्फ मैथ्स में लेते हैं मिनी टेस्ट। तो इसको अच्छे से फॉलो करें ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो इससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट काफी बच्चों को मिलने लगा है और आपको मिल सकता है। तो मिनी टेस्ट को जरा सीरियसली लेकर इसके ऊपर वर्कआउट करें। जैसे मैंने आपको एडवांस बैच की बात की, एडवांस बैच में भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। हम एवरी मंथ इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेंटल एबिलिटी, 5 सब्जेक्ट होते हैं। हम एक टेस्ट लेते हैं मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी एंड एक टेस्ट लेते हैं साइंस। तो मंथ में 2 एग्जाम्स होती हैं और वो भी एमसीक्यू, टोटल एमसीक्यू। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इट्स लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और साथ साथ में जब भी कोई ओलंपियाड जैसे एनटीएससी आ गया तो एनटीएससी की मॉक टेस्ट होती हैं, वो सारी चीजें मतलब बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए टेस्ट, वो सब इसके अंदर आता है। इसके मॉड्यूल्स भी अलग से हम देते हैं सारे सब्जेक्ट में। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में तो आप सब अवेयर है ही, राइट। आपको सारी चीजें आपके नंबर में, अगर आपने फादर का नंबर, मदर का नंबर, स्टूडेंट का नंबर जो भी आपने रजिस्टर करवाया है वो नंबर पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते ही हैं।
आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी मेरे साथ शेयर करते हैं, टीचर्स के साथ शेयर करते हैं। और जिसको मैसेज नहीं मिलते हैं, बराबर, वो मैं एक नंबर देता हूँ, वो खाली आप मोबाइल में सेव कर लोगे तो आपको भी मैसेज मिलने लगेंगे। इफ यू हैव रजिस्टर्ड योर नंबर हियर, वो एक नंबर आपको मोबाइल में सेव करना रहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ग्रुप रहता है। अगर आप नंबर सेव करोगे तभी आपको मैसेजेस मिलेंगे। जिसके पास नहीं है वो नंबर या सेव कर ही लें, दैट इज 9724328989। 9724328989। जिसको मैसेज मिल रहा है उसको तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं मिल रहे हैं वो अपना नंबर मुझे दे दें और ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। ये श्री राजकुमार आहूजा सर हैं, जो अभी अपने बीच में नहीं है। कोविड की जो सेकेंड वेव थी, राइट, तो उसमें उनका देहांत हो गया, वो भी अपने पास नहीं है। सर भी काफी मोटिवेटेड, हमको मोटिवेट करते थे, बच्चों को भी मोटिवेट करते थे। हम टाइम टू टाइम बच्चों के करियर गाइडेंस के लिए, आपके रिजल्ट्स देने के लिए हम पीटीएम वगैरह करते ही हैं, राइट। और बच्चे का परफॉर्मेंस डिस्कस करने के लिए पीटीएम की वेट करने की जरूरत नहीं है। मैं हर पेरेंट को बताता हूँ, आपको जब भी प्रॉब्लम है आप तुरंत इंस्टीट्यूट पे आइए, मुझे फोन करके आप टाइम लेकर के इंस्टीट्यूट पे आइए, आपको पीटीएम की वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट का जो ग्रोथ है उसमें स्टूडेंट के एफर्ट 30%, टीचर्स के एफर्ट 50%, बट टीचर पेरेंट कोऑर्डिनेशन और जो पेरेंट्स के एफर्ट्स है वो 20% है। टीचर का पेरेंट्स के साथ क्या कम्युनिकेशन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टूडेंट्स ग्रोथ। टीचर्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार बच्चे को ट्यूशन में रखने के बाद पूरे साल हमें मिलने ही नहीं आते। अगर आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आपका 20% तो रोल रहेगा। आपको पढ़ाना नहीं है, आपको खाली टीचर्स के साथ टच में रहना है। आपके बच्चे का जो अपडेट एवरीडे घर पे लेना होता है, वो अपडेट लेना है कि बेटा क्या काम किया, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, आपके कितने मार्क्स आए, कौन सी टेस्ट है। अगर इतना कंट्रीब्यूशन आप नहीं करेंगे तो हम कितना भी कोशिश कर लेंगे, बच्चों के परफॉर्मेंस में थोड़ी ना थोड़ी कमी रही जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर हमारी जो पूरी टीम है, किंजल मैम को आप जानते हैं, प्रियंका मैम को भी जानते हैं, मेरा नाम विशाल सर है, रितु मैम एंड सामिनी मैम। ये हमारी कोर टीम है जो हमारे साथ लगभग 3 साल से काम कर रहे हैं और आगे भी काफी साल काम करेंगे, ठीक है। और भी काफी टीचर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि 11th-12th में हमारे यहाँ पर साइंस चलता है। हम सिर्फ साइंस फील्ड में ही 11th-12th में पढ़ाते हैं, कॉमर्स वगैरह यहाँ पर नहीं चलता है। तो साइंस में हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं, जिन्होंने काफी अच्छा, जैसे कुरिल सुष्मेंद्र, उसने आईआईटी एडवांस में, जेडब्ल्यू एडवांस में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और उसका सिलेक्शन आईआईटी जम्मू में हो गया है। तेजल गोहेल, जिसने एमबीबीएस में, एमएस यूनिवर्सिटी में उसको एमबीबीएस में अभी पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट में काफी अच्छा स्कोर था। तन्वी महरिया, पटेल हर्ष, देवांशा, इन सबके जेडब्ल्यू नीट में काफी अच्छे स्कोर रहे। बच्चे इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करने के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज मूर्धन सोंगड़े। ये हमारा करंट ईयर का जो रिजल्ट है वो है, ही अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 486, दैट इज कैटेगरी रैंक। उसकी जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, उसमें उसका रैंक है, बट उसको भी आईआईटी में भी उसका सिलेक्शन हो चुका है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारे नीट के करंट ईयर